Good morning, everyone. This is Rohit Gupta. I'm working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology, subject in electrical engineering, numerical methods, and statistics. Today's topic: regular fallacy and second method for finding the root of equation. Okay. In previous classes, I have discussed the introduction of numerical method. In previous class, I have discussed the numerical introduction of numerical methods and bisection method. Another method is for finding the root of equation. Its second method. Then we will discuss regular fallacy method. Why we are doing numerical methods? Because in previous class I have discussed that when we are not able to find the root of equation by simple method or analytic method, then we solve it by numerical method. This is an approximate method. This is not this method is not will give the exact value. This will give the approximate value. Okay, got it. This is a second method. In second method, if there is a curve, this is a curve, and there are 2 points P and Q. Then that's point coordinates are xk minus 1 and fk minus 1, and Q coordinate xk and fk. I have draw a chord from point P to Q. Okay. Second method. Let xk minus 1 and xk be to approximate to the roots of f of x equal to 0. If I'm having the equation f of x equal to 0, then we have taken two roots, xk minus 1 and xk. Then p of xk minus and f of xk minus 1, as we have seen in the previous slide, and q, another point, xk and f of xk are points on the curve join points P and Q. We approximate this, also called chord method. This method is also called chord method. Means second method is also called two-point iteration method or chord method. What is called two-point iteration method or chord method. And formula of this one is xk plus 1 is equals to xk minus 1 upon fk minus 1 into f of k. That means fk means k means kth point. That means first point, that is x1, f1, and corresponding function is f1. Second point x2 and corresponding function is f2. And initial point, if I put k equal to 0, then x0 and corresponding function is f0. Initial approximation we can take by x0 and x1. Okay. Some drawbacks are there. We don't test each stage. Sorry, this is the method. The steps means every step we can't check that fk and fk minus 1 is negative. We have only taken the first approximation, then 2 points for approximation, then we proceeded. Okay. Method requires two initial point. Means इसमें दो initial point की requirement होती है, x0 और एक x1. Then it may fail if x0 and x1 far away from the root. अगर x0 और x1 different मतलब काफी distance पे हो, far away हो, तो वो उस method उस केस के लिए ये क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा. Understood है? Okay. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक क्वेश्चन गिवन होगी, उसके दो अप्रोक्सीमेट रूट गिवन होंगे, x0 और x1. उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लेंगे, दैट इज xk plus 1 is equals to xk minus 1 upon fk minus 1 into fk. अंडरस्टूड है? इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं. एंड व्हाट इज अनदर वन इज रेगुलर फाल्सी मेथड. इन दिस मेथड पहले हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. In this method, we require initial approximation x0 and x1 to the root of equation are so chosen that f of x0 into f of x1 is negative. Means regular fallacy is same like as a second method, but in regular fallacy we check at every step, that is f of xk and f of xk minus 1 is negative. If it is negative, then there is a root lie between xk and xk minus 1. जस्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेगुलर फाल्सी में हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में हम चेक नहीं करते. ठीक,
रेगुलर फॉल्सी में हम एवरी स्टेप पे चेक करेंगे, बस यही डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। In this method, we require approximate. There are 2 points required. As we discussed in previous case, we require 2 points. We require 2 points, x0 and x1. This is the initial point. So choose an equation f of x0 into f of x1 is negative. तो हमने इसका फिगर बनाया. That is, this is your figure. If I've taken a curve and there are 2 points P and Q. तो x1, तो corresponding function f of x1, x2, x0 and corresponding function f of x0. हमने यहाँ से tangent point draw करा, that is x2, and another one is x3. Corresponding function. Check at every step, that is f of xk into f of xk minus 1 is negative. For each k, f of xk and fk minus 1 is negative. Then root lie between xk minus 1 and xk. Method required two initial approximation as discussed in second case. Method always converges to root, but it may not converge to the root in second method, because if xk and xk minus 1 is far away from the root, then it is not converted in second method, but it always converted in regular falsi. Regular falsi में कोई भी approximation लेंगे तो उसपे क्या करेगा, रूट कन्वर्ज करेगा, बट सेकंड मेथड में रूट ऑलवेज कन्वर्ट नहीं करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। फॉर्मूला क्या है, xk plus 1 is equals to xk minus xk minus 1 upon fk minus fk minus 1 into fk. What is fk? That is f of xk. अगर मेरे पास फंक्शन होगा f of x equal to जैसे समथिंग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अगर मुझे f of x1 निकालना होगा तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, x1, और f of x1 को हम क्या बोलेंगे, f1। अंडरस्टूड है? अगर मुझे f2 निकालना होगा तो क्या पुट करूंगा, x की जगह पे x2, तो उसे क्या करूंगा, f2। अगर x3 f of f3 निकालना होगा तो x की जगह पे क्या पुट करूंगा, x3, तो फंक्शन क्या बोलेगा, f of x3, दैट इज f3। अंडरस्टूड है? ओके। वन एग्जांपल, सिंपल चीज, रेगुलर फॉल्सी और सेकंड के बीच में क्या है, फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, रेगुलर फॉल्सी के केस में बार हम एवरी स्टेप पे चेक करेंगे कि रूट दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर, बट सेकंड के केस में चेक नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है? रेगुलर फॉल्सी के केस में क्या करेंगे, एवरी स्टेप पे चेक करेंगे, और सेकंड के केस में नहीं करेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या है, रूट किसमें किसमें मस्ट कन्वर्ज करेगा, रेगुलर फॉल्सी में। और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में रूट मस्ट कन्वर्ज जरूरी नहीं कि करे, बट उसके लिए कंडीशन है कि वो दोनों पास पास होने चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। ठीक है? वन एग्जांपल, दैट इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x, a root of the equation x into e के पावर x minus 1 is equal to 0 lies in the interval 0.5 to 1. Determine this root is correct up to 3 decimal places. अच्छा, 3 decimal places का मतलब क्या है? अगर if anybody is saying 3 decimal places, इसमें number of iterations तो given नहीं है, तो कब तक करेंगे, कब तक iteration करेंगे, तो वो करेंगे हम 3 decimal places. Means determine the root is correct up to 3 decimal places. Means अगर मैंने पॉइंट निकाले, मान लो जैसे x1 निकाला, ठीक, x1 और x0 है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू f of x1 और f of x0, x1 और x0 के बीच का डिफरेंस लिया। ठीक है? अगर मुझे पॉइंट के बाद 3 जीरोज मिल जाए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस लेने पे तो क्या हो जाएगा, वो 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो जाएगा। मींस पॉइंट के बाद कितने जीरो मिलने चाहिए, x1 माइनस x0। अगर 3 जीरो मिल जाए पॉइंट के बाद तो 3 डेसिमल करेक्ट, अगर 2 डेसिमल का था तो पॉइंट के बाद कितने जीरो खोजते, 2 जीरो तक, तब तक हम आइटरेशन करते रहते। अच्छा, जैसे अब शुरू करते हैं, जैसे फर्स्ट वी सॉल्व बाय दिस, कैन सॉल्व बाय रेगुलर फॉल्सी एंड सेकंड मेथड, दोनों से सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट वी सॉल्व बाय सेकंड मेथड। वी हैव देयर आर 2 पॉइंट्स x 0.5 and 1, so we have taken x0 equal to 0.5 and x1 equals to 1, and f of x equal to x into e के पावर x minus 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग कि आपको न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मस्ट रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। सो प्लीज एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो
और उससे क्वेश्चन करो। और एग्जामिनेशन में भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप वहां पे अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। विदाउट कैलकुलेटर के, साइंटिफिक कैलकुलेटर के ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो प्लीज एक साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर लेना, तभी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं सेकंड मेथड। व्हाट इज सेकंड मेथड? सेकंड मेथड का फार्मूला क्या था? एक्स के प्लस वन इज इक्वल, देखते हैं ऊपर से देखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस वन अपॉन एफ के माइनस वन इनटू एफ के। ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था, मुझे क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, ये देखो आपने रखा, तो मुझे किसमें, अगर मैंने के की वैल्यू वन रखी, ठीक, अगर के की वैल्यू वन रखी होती तो क्या होता, के की वैल्यू वन रखी होती तो एक्स के प्लस वन तो एक्स टू मिल जाता, x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन f1 माइनस एफ नॉट इंटू f1 मींस, अगर मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे, x नॉट तो पता है मुझे, x नॉट की वैल्यू क्या है 0.5, x1 की क्या है 1, अब मुझे क्या चाहिए, f1 चाहिए और f1 चाहिए। अच्छा, f ऑफ x अगर गिवन है आपको, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x इंटू ई के पावर x माइनस वन। अच्छा, अगर f1 चाहिए तो आप क्या करोगे, f ऑफ x1 रखोगे। अच्छा, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो आप f ऑफ 1 निकालोगे, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस वन। अच्छा, आप जानते हो ई के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2.718 समथिंग, तो 2.71828 माइनस वन कितना आ जाएगा, 1.71828। सिमिलरली अब मुझे क्या निकालना है, एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0.5। जब मैं एफ नॉट निकालूंगा तो 0.5 इंटू ई के पावर 0.5 माइनस वन, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस 0.17564। अंडरस्टूड है? आप इसको विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते, सो प्लीज टेक अ कैलकुलेटर फर्स्ट, इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी नो दैट x2 इक्वल टू x1 माइनस x नॉट अपॉन f1 माइनस f नॉट इनटू f1। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 x नॉट x1 x नॉट x1 f नॉट f1 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 की वैल्यू क्या है 1 पुट कर दी, 1 माइनस 0.5 अपॉन 1.71828 बिकॉज f1 की वैल्यू है, माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस 0.17564 इनटू f1 की वैल्यू क्या है 1.71828। जब हम इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा 0.54637। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इसके बाद आइटरेशन करना है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हमें कितने करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मींस हम किसको किसके साथ फर्क करेंगे, x2 माइनस x1, तो मॉड्यूलस लेंगे बिकॉज एरर ऑलवेज टेकन ऑन मॉड्यूलस टाइम, क्योंकि एरर ऑलवेज इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मॉड्यूलस लेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, तो कितना आंसर आएगा 1 माइनस, सॉरी x2 माइनस x1, तो 1 माइनस समथिंग 0.56, तो 0.45363 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट लेना है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने मिले, जीरो मिलने चाहिए 3 जीरोज, तो इसका मतलब तो अभी 3 जीरोज है नहीं, 0.453 है, इसका मतलब अभी और करेंगे। अब हम इस पे और आइटरेशन करेंगे, तो x के प्लस 1 वाले फार्मूले में k की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, अगर x के प्लस 1 था तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1 इनटू f2। अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आएगा 0.54637 माइनस 0.54637 माइनस 1, तो माइनस सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.56079। फिर इसके बाद चेक करेंगे क्या, मॉडुलस चेक करेंगे, मॉडुलस ऑफ x3 माइनस x2। अगर ये 0 पॉइंट के बाद 3 जीरो मिल जाएंगे तो हमारा आइटरेशन रुक जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा आइटरेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, नाउ पुट, हमने चेक किया तो मॉडुलस ऑफ x3 माइनस x2, पॉइंट के बाद कितना जीरो मिला 0.01442, इस पॉइंट के बाद 10, यानी कि अभी अब आइटरेशन शुरू करेंगे। तो f3 निकालेंगे, तो f3 निकालोगे तो वैल्यू पुट करके निकालोगे, तो x3 की जगह x की जगह किसकी वैल्यू पुट करोगे x3 की, तो माइनस 0.01746। इसके बाद k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो उससे क्या मिलेगा x4 इक्वल टू क्या मिलेगा x3 माइनस x2 अपॉन f3 माइनस f2 इंटू f3। मींस सिमिलर प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। जैसा अगर फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो इसको आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू पुट कर देंगे और x3 की पुट कर देंगे, x2 की पुट करेंगे, फिर f3 और f2 की पुट करेंगे। आंसर क्या आएगा 0.56725। इसके बाद हम करेंगे, अब चेक करेंगे कि हमारे आइटरेशंस कंप्लीट हो गए कि अभी और आइटरेशंस करने हैं। तो कैसे चेक करोगे, मॉडुलस ऑफ x3 x4 माइनस x3, तो आंसर क्या आएगा 0.00646। अंडरस्टूड है। इसके बाद हमारा पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए, 3, तो हमें कितने मिले, 2 मिल गए, यानी कि F4 भी निकालेगा, अभी आइटरेशंस कंटिन्यू रहेंगे। F4 निकाला, फिर k इक्वल टू 4 पे x5 निकाला, x4 माइनस x3 अपॉन F4 माइनस F3 इनटू F4। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, F4 कैसे निकालेंगे, x की जगह पे x4 की वैल्यू पुट करोगे, F4 निकल आएगा, F3 निकल आएगा, पुट कर दोगे आंसर 0.56714। इसके बाद आपको मॉडल इसके कितने डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट करना, 3 डेसिमल पॉइंट। दैट मींस तो आपको मॉडुलस ऑफ x5 माइनस x4 करोगे तो 0.0011, दैट इज लेस देन 0.0005। दैट मींस दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, मींस मुझे कितने डेसिमल तक पॉइंट तक करेक्ट चाहिए था, 3 डेसिमल पॉइंट। दैट मींस पॉइंट के बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं टू रूट्स को, कॉन्जुगेटिव टू रूट्स को, तो उसके पॉइंट के बाद कितने जीरो जाने चाहिए, 3 जीरो। तो ये कितने डेसिमल तक करेक्ट हो जाएगा, 3 डेसिमल तक। ओके अंडरस्टूड। मींस आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको f ऑफ x गिवन होगा, इसके बाद आप उसको क्या करोगे, x0 x1 लोगे, इसके बाद f1 f0 निकालोगे, इसके बाद k की वैल्यू 1 पुट करो तो x2 निकल आएगा, k फिर चेक करो कि कितने डेसिमल पॉइंट तक क्लियर हो गया, अगर नहीं तो फिर k इक्वल टू 2 पुट करो। मींस सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है टिल जब तक आपको थर्ड आइटरेशन 3 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट हो जाए। समटाइम्स इन अ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि f ऑफ x इक्वल टू x इंटू e के पावर x माइनस सेम क्वेश्चन हो और आपको दिया जाए कि रूट्स फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन करेक्ट अप टू 3 आइटरेशन और थर्ड आइटरेशन। तो मींस आपको क्या निकालना होगा, x4 निकाला, अगर उसने कहा कि फोर्थ आइटरेशन दैट मींस आपको x5 निकालना होगा। अंडरस्टूड है। ओके नाउ वी विल डिस्कस अनदर मेथड दैट इज रेगुलर फाल्सी। हमने इसकी थ्योरी कर दी थी, तो रेगुलर फाल्सी का सेम प्रोसेस है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसमें एक एडिशनल चीज ऐड होती है, दैट इज मींस कि एवरी स्टेप पे हम चेक करते हैं दैट इज f ऑफ xk into f of xk minus 1 is negative or not. If it is negative then root lie between that interval. अच्छा ये किससे होता है, हमने प्रीवियस क्लास में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करी थी। इंटरमीडिएट थ्योरम में क्या था कि अगर f of x0 into f of x1 is negative, that means there is a root, there exists a root, at least one root which is lie between x0 and x1। अच्छा आप बताओ, the root lies between, अच्छा मैं पहले f of x पे वैल्यू चेक करेंगे, तो f of x की वैल्यू क्या थी, x into e के पावर x minus 1। अंडरस्टूड है। x0 की वैल्यू क्या है 0.5, x1 की क्या है 1। अगर f of x0 निकाला, मैंने निकाला था ऊपर, दैट इज माइनस 0.17564 एंड f1 क्या है 1.71828। दैट मींस f0 और f1 क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब इसके बीच में एक रूट लाई करेगा, अगर रूट लाई करेगा तो दैट मींस इंटरवल क्या होगा 0.5 to 1, तो k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो x2 निकलेगा। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस x0 f अपॉन f1 माइनस f0 इनटू f1। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.54637। अच्छा यहां तक तो सेम ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने करने हैं। वो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर दोगे। अगर आपने मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 किया तो आंसर आएगा 0.4563। दैट मींस हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए। दैट मींस पॉइंट के बाद कितने जीरोस होने चाहिए, 3। अगर फिर इसके बाद हम f ऑफ x2 निकालेंगे। हाउ कैन आई फाइंड f ऑफ x2, f ऑफ x की जगह पे हम f ऑफ x के फॉर्मूले में दैट इज x into e के पावर x minus 1 पे x की वैल्यू हम x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दैट इज 0.54637। इसको पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.05643। मींस ये x की वैल्यू है, ठीक, x into e की पावर x minus 1 पे, ठीक है। सिंस अब बताओ f2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। f1 क्या है, f1 क्या है, पॉजिटिव। मींस रूट किसके बीच में लाई करेगा, f1 और f1 into f2 नेगेटिव है, दैट मींस रूट किसके बीच में लाई करेगा, x1 और x2 के बीच में। अच्छा लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, x2 की x1 की, x2 की।
दैट इज 0.54637 कॉमा 1 पे। अच्छा आप बताओ, अगर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x3 x2 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन f2 माइनस f1, बट मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, f1 x1 की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.54637। आप चाहो तो x0 और x1 पे वैल्यू स्वैप कर दिया करो। दैट मींस कि अगर जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है उस छोटे वाले पॉइंट को x0 मान लो, जैसे इसको x0 मान लो और इसको x1, सिंपली आप वैल्यू स्वैप करते रहो, ठीक है। तो k इक्वल टू 2 के लिए फाइंड किया, x2 की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 माइनस 0.54637 अपॉन 1.71828, तो माइनस माइनस प्लस 0.056 0.05643, ओके आप वैल्यू पुट करोगे इनटू 1.17182, मींस सिंपली आप इस पे क्या करोगे, ये f2 या मानो या तो x0 x1 मान लो, कुछ भी मानो, दैट इज, तो हमने क्या लिया 1 और इसको स्वैप कर लो, या तो x0 x1 पे स्वैप कर लो, डोंट बी कंफ्यूज, अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लो जैसे भी करना है, ठीक है। ये आपका इंटरवल है, इसे x0 मान लो या तो x1 मान लो, इसे x2 मान लो, इसे x1 मान लो, जो भी कर रहा है कर लो, ठीक है। हमने देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, जब x3 की वैल्यू फाइंड करा तो 0.56079, दिस इज द वैल्यू ऑफ x3। अच्छा अब हम इसके बाद क्या चेक करेंगे कि अगर मॉडुलस ऑफ x3 माइनस x2 0.0 सम 000 मिल जाए तो इटरेशंस नहीं होंगे, हमने मॉडुलस किया तो वो होगा नहीं, इसका मतलब f ऑफ x3 निकाला, सिंस f1 f ऑफ x3 कितना है, f3 कितना है नेगेटिव, और f2 क्या है पॉजिटिव, f2 क्या है नेगेटिव, f1 क्या है नेगेटिव, दैट मींस f1 और f3 के बीच में रूट लाई करेगा, दैट मींस x3 x1, तो k इक्वल टू 3 अनदर आइटरेशन, सेम प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे तो x4 मिल जाएगा, वो क्या होगा 0.56521, इसके बाद मॉडुलस ऑफ x4 माइनस x3 करेंगे, जिसके बाद क्या होगा इक्वल टू 0.00442, अंडरस्टूड है, ओके। नाउ x4 मिल गया, यानी कि अब मैंने x4 मॉडुलस ऑफ x4 माइनस x3 किया, पॉइंट के बाद कितने जीरोस मिले 2, इसका मतलब अभी आइटरेशंस और करने होंगे, ठीक है, अभी और आइटरेशंस करेंगे, व्हेन वी तो आइटरेशंस नेक्स्ट आइटरेशन करेंगे तो हम उससे किससे डिनोट करेंगे x, तो सिंस रूट लाई बिटवीन f1 एंड f4, तो इंटरवल क्या होगा 0.56521 के इक्वल टू 4 पे करेंगे तो x5 मिल जाएगा, x1 माइनस x4 अपॉन f1 माइनस f4 इनटू f1, वैल्यू पुट करेंगे तो आप बताओ x5 की वैल्यू क्या आ गई 0.56654, f5 निकाला, f1 इंटू f5 निगेटिव है, either you can find root of equation by नेक्स्ट वन क्या है, सॉरी आई थिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गया था, k इक्वल टू 4 पे निकालेंगे दैट इज x5, तो x5 की वैल्यू क्या होगी x1 माइनस x4 अपॉन f1 माइनस f4 इनटू f1, तो x5 की वैल्यू क्या होगी 0.56654, तो f5 क्या होगा माइनस 0.00167, f1 f5 नेगेटिव है, सो रूट लाइज इन द इंटरवल, तो हम x6 निकाल लेंगे, देन मॉडुलस ऑफ x6 माइनस x5 इज इक्वल टू 0.00042, this is less than 0.0005, that means hence root correct up to 3 decimal places, okay। just listen one thing कि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो उस इक्वेशन के अगर रूट फाइंड करना है तो देयर आर टू मेथड, there are more many methods, first one is bisection, another one, there are many methods, first one is bisection, another one is regular falsi, another one is secant, then आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, सिंपली अगर 1.2 पॉइंट गिवन है तो आप बाइसेक्शन अप्लाई करोगे या तो सेकंड अप्लाई करोगे या तो रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन मेथड इज नॉट, बाइसेक्शन मेथड जल्दी रूट कन्वर्ज नहीं करेगा, सिंपली सेकंड मेथड रूट का कन्वर्जेंस जल्दी होगा, मींस नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ आइटरेशंस कम होंगे,
एंड रेगुलर फॉल्सी और सेकंड मेथड में डिफरेंस क्या है? सेकंड मेथड में हम एक बार x0 x1 इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, इसके बाद x3 x4 x2 x3 x4 फाइंड करते रहेंगे, बट इन रेगुलर फॉल्सी हमें एवरी स्टेप पे चेक करना होगा। दैट मींस कि रूट इनके बीच में f0 f1 और f ऑफ x के -1 नेगेटिव है कि नहीं, और उसके बीच में रूट लाइक करेगा तभी करेंगे। ठीक है, सेकंड में किसी भी मेथड स्टेप पे चेक नहीं करना, रेगुलर फॉल्सी में वी चेक एट एवरी स्टेप। सेकंड मेथड में जरूरी नहीं कि आपको सॉल्यूशन फाइंड ही मिले ही, समटाइम्स इट मे आल्सो फेल, बट इन रेगुलर फॉल्सी इट ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी में आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।